Hello students, today we will discuss oxidation and reduction on the basis of oxidation number. So how we can identify or calculate oxidation number of an element or an atom in a compound. We have discussed a number of rules by which we can find out oxidation number of atom in any molecule. So using that rules which we have learned in our previous classes, we will explain how we can find out oxidation number of any atom in a molecule. For example, we have a molecule that is MnO4 negative, that ion, and we have to find out oxidation number of Mn. ये देखिए हमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है और हमें जो गिवन है वो है हमारे पास MnO4 नेगेटिव. सो अकॉर्डिंग टू रूल दैट वी कैन से द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन एनी आयन is equal to the charge of that ion. So according to that rule, oxidation number of Mn plus oxidation number of 4 into O is equal to -1. So oxidation number of Mn we have to calculate. So let it x plus 4 into O. According to rule which we have previously discussed, oxidation number of O in a number of compound is -2. So हम लोग यहाँ पे O का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेंगे? -2, जो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर लिया है रूल्स के अकॉर्डिंग. तो वो हो गया -2 और इज इक्वल टू -1. सो 4 into -2 -8. So x minus 8 is equal to -1. So x is equal to +8 -1. So it is equal to +7. So हम लोग कहेंगे यहाँ पे जो Mn है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +7. Clear? Okay. Now let another example. The another example is ClO3 minus, and we have to find out oxidation number of Cl. Correct? So according to rule, the sum of oxidation number of all atoms in this ion is equal to its charge. So it would be equal to -1. So oxidation number of Cl plus 3 into oxidation number of O is equal to -1. So oxidation number of O is equal to -1. So oxidation number of Cl plus 3 into O oxidation number that is -2. So is equal to -1. 3 into -2 that is equal to -6. So Cl is equal to +6 -1. So is equal to +5. So we can say here oxidation number of Cl is equal to +5. And oxidation number of Cl is equal to +5. Clear? Okay. Next example is, suppose we have Cr2O7 - 2 and we have to find out oxidation number of Cr. We have to remember that oxidation number of पर एटम वी हैव टू कैलकुलेट. जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो एक एटम का कैलकुलेट किया जाता है, सिंगल एटम का. सो वी हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिंगल Cr. यहाँ पे 2 Cr है, एक Cr का आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है. सो लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इज x. तो हम लोग Cr का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसे क्या ऐड कर लेते हैं? x ऐड कर लेते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू रूल द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन दिस आयन will be equal to the charge. So we can say the oxidation number of 2 into Cr plus oxidation number of 7 into O is equal to -2. So 2 into x plus 7 into O. O का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे? O का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे होगा -2 is equal to -2. So 7 2s are 14. So it's -14. So 2 into x is equal to +14 minus 12 is equal to -2 is equal to
12. So x is equal to plus 12 divided by 2. So it is equal to 6. So we can say oxidation number of Cr here is equal to plus 6. तो देखिए दो Cr है, दोनों Cr का जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा प्लस 6 होगा. आपको ऑक्सीडेशन नंबर जो कैलकुलेट करना होता है हमेशा पर एटम कैलकुलेट करना होता है. तो आप यहाँ पे Cr का ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहेंगे प्लस 6. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. Suppose Br minus is given. So for any charged species, the oxidation number of that atom would be equal to that charge. कोई भी अगर आपके पास आयन होता है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है उसका चार्ज. तो अगर हमारे पास कहीं Br माइनस लिखा हुआ है और कोई हमसे पूछता है यहाँ पे Br का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो Br का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा. दैट विल बी इक्वल टू -1. सो Br का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना होगा -1. सिमिलरली अनदर एग्जांपल Fe+3. अगर हमसे कोई कहे Fe+3 जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो Fe+3 का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए क्या होगा. यहाँ पे चार्ज कितना है +3. सो ऑब्वियसली यहाँ पे Fe+3 में Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +3. क्लियर? बट इफ आई एम राइटिंग लाइक दैट FeS मींस सॉलिड. अब देखिए यहाँ पे Fe+3 लिखा गया था, यहाँ पे आयरन जो है वो आयन की स्टेट में है. Fe+3 आयन की स्टेट में, जबकि यहाँ पे FeS लिख दिया मींस Fe जो है आयरन जो है वो सॉलिड है. तो यहाँ पर जो Fe है वो एलिमेंटल स्टेट के अंदर है. यहाँ पे जो Fe है वो एलिमेंटल स्टेट में है. और एलिमेंटल स्टेट के अंदर अगर हम लोग देखें तो एलिमेंटल स्टेट के अंदर Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होता है 0. वो कितना होगा 0. तो यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 0. यार सिमिलरली अगर हम लोग देखें कि हमारे पास आता है Br2. अगर हमारे पास Br2 आता है तो Br2 में Br का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा 0 होगा. बिकॉज यहाँ पे जो Br है वो क्या है एलिमेंटल स्टेट में. तो जब भी कोई चीज एलिमेंटल स्टेट में होगी तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 0 होगा. And let's take another example. Suppose question is C2O4 -2 and we have to calculate the oxidation number of carbon. हमारे पास C2O4 -2 है और हमें जो है वो कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर. किसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है हम लोगों को कार्बन का. सो वी कैन राइट अप लाइक दैट 2 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस 4 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O is equal to -2. So 2 into x because let the oxidation number of carbon is x. So that is equal to 2 into x. So we can write out like that 2 into x plus 4 into -2 is equal to -2. So 2x plus 4 into -2 means -8 is equal to -2 and 2x is equal to plus 8 minus 2. So that is equal to plus 6 and x is equal to plus 3. So we can say here the oxidation number of carbon is in plus 3 oxidation state. So इस तरह से जो आयन होते हैं उन आयन में किसी भी पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट्स अनदर एग्जांपल. सपोज वी हैव ए कंपाउंड. हमारे पास एक पूरा कंप्लीट कंपाउंड है, उसमें हमें किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है. तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर एग्जांपल KMnO4. यहां हमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है. क्लियर? देखिए सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है, जो हम लोग उसमें डिस्कस कर चुके हैं. तो K का ऑक्सीडेशन नंबर +1 प्लस Mn का हमें लैंड करना है तो उसको x लैंड कर लीजिए प्लस O का ऑक्सीडेशन नंबर 4 into -2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0. बिकॉज न्यूट्रल कंपाउंड में जो सम होता है ऑक्सीडेशन नंबर का ऑफ ऑल एटम वुड बी इक्वल टू 0. आयन में जो सम होगा ऑक्सीडेशन नंबर का वो चार्ज के इक्वल होता है, बट न्यूट्रल कंपाउंड में जहां कोई भी चार्ज नहीं है वहां पे जो सम होता है ऑल एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर का वो किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है, जो हम लोग अपनी प्रीवियस
प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर आ जाएगा +1 और प्लस x और 4 इंटू -2 मीन्स -8 इज इक्वल टू 0। सो -8 and +1 that is -7, so x - 7 is equal to 0, so x is equal to +7, so x का ऑक्सीडेशन x means mn, so यहाँ पे mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा +7। यहाँ पे mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा +7 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ x is equal to +7। क्लियर? तो अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आता है वो देखिए, अब अगर हम लोग ये देखते हैं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है हमारे पास, वो ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन से सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन से सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है इन ए रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल MnO4 माइनस प्लस I2 प्लस I माइनस गिव्स Mn+3 प्लस I2। सपोज हमें एक रिएक्शन देखी, दैट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन and we have to find out of which substance oxidation occur and which substance is reduced। कौन से सब्सटेंस का या कौन से रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन से रिएक्टेंट का रिडक्शन हो रहा है, हमें वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहले देखते हैं MnO4 माइनस जो कन्वर्ट हो रहा है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, Mn+3 में कन्वर्ट हो रहा है, और I माइनस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है I2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। देखिए जब आप लोग रूल्स के अकॉर्डिंग Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +4 इंटू O का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू -1। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर ऐड कर लो x +4 इंटू O का ऑक्सीडेशन नंबर -2 इज इक्वल टू कितना हो गया, -1 हो गया। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा +7। तो यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +7। यहाँ पे Mn जो है आयन की स्टेट में है और हम लोगों ने देखा है कि जो आयन होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज इक्वल टू चार्ज, वो चार्ज के इक्वल होता है। तो यहाँ पे Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया वो हमारे पास +3 आया। अब देखिए, अब अगर हम सोचे Mn जो है वो +7 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया और हम लोगों ने रूल्स लिखा है, हमें पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, देखिए व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मींस इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन मींस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यानी किसी मॉलिक्यूल में अगर हम लोग कहें किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग कहेंगे उस मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जहां ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाए तो हम कहते हैं कि उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो आप देखिए MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +3 चला गया, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना मतलब रिडक्शन, सो वी कैन से MnO4 माइनस का क्या हुआ, रिडक्शन हो गया, MnO4 माइनस का रिडक्शन हो गया। क्लियर? उसके बाद देखिए I माइनस आयन की स्टेट में है तो ऑब्वियसली यहाँ पे I का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1 होगा, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो I2 एलिमेंटल स्टेट में तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इसका 0 होगा। तो आप सोचिए -1 से कितना चला गया, 0 चला गया। तो -1 से 0 जाना मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना। तो I माइनस जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो I माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम लोग कहेंगे I माइनस जो है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे I माइनस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि MnO4 माइनस का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो आप लोग इसको समझिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। Let's see another example. Suppose I am saying Cr2O7 minus 2 plus C2O4 minus 2 gets converted into Cr plus 3
प्लस CO2, ये रिएक्शन लिख दी। एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि Cr2O7 -2 एंड C2O4 -2 इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कीजिए बच्चों। जब आप लोग यहाँ पे Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा +6 और यहाँ पे Cr आयन की स्टेट में है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा Cr का कितना आएगा, +3 आएगा। अब यहाँ देखिए अगर हम लोग सोचे कि Cr2O7 -2 जो है वो कन्वर्ट किस में हुआ, Cr+3 में। यहाँ ऑक्सीडेट आयन C2O4 -2 जो है वो कन्वर्ट हुए किसके अंदर, CO2 में। तो देखिए ऑक्सीडेट आयन यहाँ क्रोमेट आयन की बात करते हैं, माने Cr2O7 -2 की बात करते हैं, तो वो +6 से +3 में चला गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्लियर। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग कहते हैं यहाँ पे C2O4 -2 जो है वो कन्वर्ट हुआ CO2 में। तो C का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेक करोगे तो +3 आएगा। यहाँ पे जब आप चेक करोगे CO2 में C का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करोगे तो +4 आएगा। तो हमें समझ में आ रहा है +3 से +4 जा रहा है, इट मींस ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कहते हैं Cr2O7 -2 जब कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, Cr+3 में, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना मींस रिडक्शन। सो वी कैन से Cr2O7 -2 का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर। उसके बाद देखिए C2O4 -2, C2O4 -2 में जो कार्बन है +3 से कौन सी स्टेट में जा रहा है, CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, मींस +4 में जा रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो C है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना मींस ऑक्सीडेशन। सो वी कैन से दैट इज ऑक्सीडेशन। सो C2O4 -2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर। ओके बेटा, लेट्स अनदर एग्जांपल, एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, और वहां आप लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। सपोज MnO4 माइनस प्लस Fe+2 gives Mn+2 plus Fe+3 plus Fe+3। ओके, लेट्स सी किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। जरा सोचिए 2 मिनट के लिए, जरा सोचिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम रिएक्टेंट साइड को सोचते हैं, मतलब इन दोनों में से ही किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या रिडक्शन हो रहा होगा। तो आपको बताना है MnO4 माइनस और Fe+2 इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखिए, सोचिए जरा और उसके अकॉर्डिंग आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। करेक्ट। देखिए यहाँ पे Mn जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +7 होगा। यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, मान लीजिए +2 हो गया। तो +7 से वो कितना चला गया, +2 चला गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली हम लोग कहेंगे ये हो रहा है रिडक्शन। यानी MnO4 नेगेटिव जो है वो प्रोसेस है इसका ये MnO4 नेगेटिव परमैंगनेट आयन बोलते हैं इसको, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसका रिडक्शन हो रहा है। आफ्टर दैट देखिए Fe+2 की अगर हम लोग बात करें तो Fe+2 से वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, Fe+3 में। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो +2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो +3। तो अगर हम लोग यहाँ सोचिए तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ मींस इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर। Fe+2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखिए जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, जो स्पेशली आयन वाली इस तरह की रिएक्शन होती हैं, उनमें हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी स्पीशीज रिड्यूस हो रही है। क्लियर। ओके, देखिए हमें समझ में आ गया कि किस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं और हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द सब्सटेंस व्हिच इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस व्हिच इज रिड्यूस्ड।
Now let's take another topic, that is oxidizing agent. Oxidizing agent and reducing agent. Reducing agent. Oxidizing agent and reducing agent. Oxidizing agent and reducing agent. Let's take another example, that is oxidizing agent and reducing agent. Clear? अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, हम लोग अगर इसको समझें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, देखिए ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द सब्सटेंस हुज रिडक्शन अकर्स। देखिए बड़ा सिंपल सा आइडेंटिफाई करना मैं अगर आपको सिखाऊं तो जिन चीजों का रिडक्शन होता है एक्चुअल में वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस डी। A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस डी। मैं ये कहता हूं कि जो A है उसका सपोज ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड जो B है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो A का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट A का ऑक्सीडेशन कर कौन रहा है, B कर रहा है। A का ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, B कर रहा है। दैट्स व्हाई B इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर? यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं। एंड व्हाट आर द रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो किसी दूसरे का रिडक्शन करते हैं, दूसरे का रिडक्शन करते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए बी का रिडक्शन हो रहा है, लाइक अगर बी का रिडक्शन हो रहा है तो बी का रिडक्शन कर कौन रहा है, बी का रिडक्शन कर रहा है ए। दैट्स व्हाई ए इज रिड्यूसिंग एजेंट। ए इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए अगर हम लोग यहां समझे तो जिनका ऑक्सीडेशन होता है, जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और जिनका रिडक्शन होता है वो बेसिकली क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्लियर? तो हम लोग ये कह सकते हैं व्हाट आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर द सब्सटेंसेस व्हिच ऑक्सीडाइज अदर सेल्स। एंड व्हाट आर द रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट आर द सब्सटेंसेस व्हिच रिड्यूसेस अदर सेल्स। जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम लोग लिखते हैं MnO4 माइनस प्लस Fe प्लस 2 इज इक्वल टू Mn प्लस 2 प्लस Fe प्लस 3। Let's take an example of this redox reaction. In this redox reaction, we have previously seen that MnO4 माइनस जो है इसका रिडक्शन हो रहा है, ये हम लोग देख चुके हैं। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। और Fe प्लस 2 Fe प्लस 3 में जा रहा है, मतलब Fe प्लस 2 का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दैट्स व्हाई हम लोग ये कह सकते हैं Fe प्लस 2 जो है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। बट सपोज वो आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड विच एलिमेंट इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए MnO4 नेगेटिव जो है उसका रिडक्शन हो रहा है, बट उसका रिडक्शन कर कौन रहा है, उसका रिडक्शन कर रहा है Fe प्लस 2 आयन। कौन कर रहा है, Fe प्लस 2 आयन। दैट्स व्हाई Fe प्लस 2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमारे पास क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो क्या चीज है, वो है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली Fe प्लस 2 का क्या हो रहा है, देखिए Fe प्लस 2 का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो Fe प्लस 2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Fe प्लस 2 का ऑक्सीडेशन कर कौन रहा है, Fe प्लस 2 का ऑक्सीडेशन कर रहा है MnO4 नेगेटिव आयन। दैट्स व्हाई वी कैन से MnO4 नेगेटिव आयन दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो देखिए यहां पर भी वही हुआ कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल है आइडेंटिफाई करना कि अगर क्वेश्चन आता है यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई कि कौन सी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है
और कौन सी का रिडक्शन हो रहा है। बस आप वो आइडेंटिफाई कर लो। जब आप वो आइडेंटिफाई कर लोगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, उसके बाद आप जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको लिख दीजिए, उसका वो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो जो चीज बनेगी, वो स्पीशीज जो होगी, वो बेसिकली हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर हो गया। तो देखिए बच्चों, इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के बिहाफ पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन होता है और किसका रिडक्शन होता है। और इसी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर के बिहाफ पे हम लोग ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका जो एलिमेंट है वो कौन सा, जो स्पीशीज है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सी स्पीशीज जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज वी हैव सोडियम Na solid प्लस Cl2 गैस एंड इट विल फॉर्म NaCl। हमें बताना है इन दोनों में से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई Na और Cl2 दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। हम लोग पहले ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे समझे Na जो है वो क्या है, सॉलिड स्टेट में। Na जो है वो सॉलिड स्टेट में है, तो ऑब्वियसली जो Na होगा वो एलिमेंटल स्टेट में है। तो जब वो एलिमेंटल स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 होगा। और यहाँ पे Cl2 है वो भी एलिमेंटल स्टेट में है, दैट्स व्हाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। अब देखिए, मैंने बताया था कि सोडियम जो होता है अगर वो किन्हीं कंपाउंड्स में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 होता है। सो इन NaCl, Na जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1 होगा। तो यहाँ पे Na का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +1 हो गया। यहाँ पे Cl की अगर हम लोग बात करें तो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1 होगा। क्लियर। क्योंकि जनरली जो हेलोजन्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर जनरली वो -1 होता है। तो यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -1 हो गया। ये इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा, Cl लेकर जाएगा, आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो -1 चार्ज पे आएगा, सोडियम लूज करेगा तो सोडियम पे कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे सोचे तो देखिए, सोडियम जो है वो 0 से कितना चला गया, +1 चला गया। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इट मींस जो सोडियम है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर। और देखिए Cl2 की अगर हम लोग बात करें तो Cl2 जो है वो 0 से जा रहा है -1, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है मींस हम लोग कह सकते हैं Cl2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में मान लीजिए पूछा गया विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई लाइक ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है वो चीज क्या बनेगी, रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम क्या बनने वाला है, यहाँ पे सोडियम बनने वाला है रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब वो किसका रिडक्शन कर रहा है, क्लोरीन का रिडक्शन कर रहा है। तो इसी तरह सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट सोडियम का ऑक्सीडेशन कर कौन रहा है, सोडियम का ऑक्सीडेशन कर रहा है कौन, क्लोरीन कर रहा है। तो ऑब्वियसली हम लोग कहेंगे जो क्लोरीन होगा वो क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्लोरीन जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर है। तो बच्चों देखिए, आप लोग किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में अब ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। साथ में आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी स्पीशीज है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सी स्पीशीज है जो रिड्यूसिंग एजेंट है। और साथ में आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर आपको कोई मॉलिक्यूल गिवन है तो उसमें पर्टिकुलर एलिमेंट का या पर्टिकुलर एटम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, वो भी आप रूल्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम लोग ये आज के टॉपिक में हम लोगों ने समझा, यानी हम लोगों ने देखो जो रिडॉक्स रिएक्शन है उस रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोगों ने 2-3 तरह से हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया। रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोगों ने 2-3 तरह से एक्सप्लेन किया। आप लोग रिडॉक्स रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन की टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। आप रिडॉक्स रिएक्शन को जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, नेगेटिव एलिमेंट के अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। या आप सबसे बेस्ट वे क्या रहता है, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना आता है तो आप ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है वो एक अच्छा मेथड है आइडेंटिफाई करने का रिडॉक्स रिएक्शन को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। थैंक यू।